Today's scripture, turn with me, the Gospel according to Matthew chapter 1 verse 21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. In advance, a very happy Christmas and blessed New Year to all. क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर ख्रिस्त जन्मोत्सव और नए साल को मनाएंगे, तब आप में से बहुत से लोग अपने अपने घरों में होंगे। तो मैं पहले ही आपको शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जब आप जाएं, यह वर्ष और यह ख्रिस्त जन्मोत्सव आपके लिए आशीष में रहने पाए। आइए हम बिना समय गवाए जो शास्त्र भाग आपके सामने पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम आएंगे। विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, शेल वी ऑल टर्न आवर बाइबल टू गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 1, एंड एज यू ऑल may have very well heard, I would request someone to read the verse number 18 out loud. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. As you all know that the chapel preaching schedule, it says that Christmas season, right? Or to be more precise, it says the spirit of Christmas, right? हिंदी में अनुवाद करें तो क्या होगा? क्या होगा? कोई तो अनुवाद कर दो, पास्टर। हाँ, किसकी आत्मा? So sometimes translation is Ritu, okay? That is season of Christmas. I think spirit of Christmas. So you know that translation is not always that easy, right? The spirit of Christmas. So the passage that I have chosen this morning is from Gospel according to Matthew chapter 1, verse number 18 down till verse number 21. So कोई ऊंची आवाज से पढ़ने में एक बार सहायता करें। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। धन्यवाद। And I thank God for this beautiful opportunity that God has given to me to share His word with you all. And I'm also thankful to our President, Dr. Thomas, for giving me this opportunity to do the service of the Lord in this place and also to be able to preach in this chapel service. Hope the PowerPoint is ready. Yeah. The title. शीर्षक अपने संदेश का मैंने इस प्रकार से दिया है, पवित्रता के लिए बुलाहट। पवित्रता के लिए बुलाहट। क्रिसमस क्राई इज अ कॉल टू कॉन्सिक्रेशन। ख्रिस्त जन्मोत्सव को जब आप मनाते हैं, जब इसके विषय में आप विचार करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, सुनाते हैं, जो आज इस मुद्दे को आपके बीच में रखना चाहूंगा वह है पवित्रता। यह ख्रिस्त जन्मोत्सव, अगर आप मोबाइल में टाइप करेंगे क्रिसमस, किसी को व्हाट्सएप मैसेज वगैरह तो आप भेज ही रहे होंगे, तो जैसे ही आप टाइप करते हैं क्रिसमस, क्या दिखाई देता है? कोई बताएगा सबसे पहले? या somebody said from this, I think रोशन, excellent। जैसे ही आप क्रिसमस टाइप करते हैं, जो पहला सिंबल, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, सबसे पहला जो दिखाई आपको देता है वो होता है क्रिसमस ट्री, राइट? And that is where we lose the entire meaning and the sense of Christmas. When you look at the Bible, especially in the chapter 1, Gospel according to Matthew,
you see there couple of verses that signifies the importance and the value of holiness in the context of Christmas. इन अध्यायों में, शुरुआती अध्यायों में हर एक सुसमाचार के जब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम चलता है कि जब मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि क्रिसमस इज अबाउट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उस मसीह के जन्म के संदर्भ में बहुत सी पवित्रता की बातें आपको और मुझे दिखाई देती है। तो उन पवित्रता की बातों को निकालते हुए आपके सामने 6 बातें मैं रखना चाहूंगा, which will become the content of my message that will help you to understand the significance of holiness during, and maybe I should say in the life of a Christian as we celebrate the festival of Christmas. And the proposition that I have prepared, that I will be authenticating through my message, is from conception through culmination. From conception through culmination, Christmas is about consecration. Therefore, the celebrator of Christmas must learn to live a consecrated life. From conception to culmination, Christmas is about consecration. Therefore, a celebrator of Christmas must learn to live a consecrated life. जबकि ख्रिस्ट जन्मोत्सव के आरंभ से लेकर के अंत तक आपको पवित्रता दिखाई देती है, तो इस उत्सव को मनाने वाले जो उत्सवी हैं, यह उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करें. Having given my proposition, I would like to quickly go to my point number 1, and we would not have much time to be able to stay and explain everything, but I hope you are the student of the Bible, and the Bible itself and the Holy Spirit will help you to delve more and understand this point as you read along with me. So जैसे कि रेवरेंड कंचन ने पढ़ा, आप सब ने सुना, 18 आयत में, मैं NKJV बाइबल है, यहां से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. Now the very first point that I would like to keep before you, all starts with C, so somehow it will be easy for you to remember. The very first point, the creator of Christmas. The creator of Christmas is ख्रिस्ट जन्मोत्सव का रचयिता, बनाने वाला. त्रिएक परमेश्वरत्व के एक व्यक्तित्व का नाम यहां पर आपको दिखाई देता है. किसका नाम आपको दिखता है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट. इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव को जो बनाने वाला है वह स्वयं पवित्र आत्मा है. और परमेश्वर के बारे में जब आप बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कई आयतें मैं अलग अलग भागों से आपके बीच में रख सकता हूं जो इस बात को दर्शाता और प्रमाणित करता है कि परमेश्वर स्वयं पवित्र है. हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो एक पवित्र परमेश्वर है, जिसका खुद का जीवन जितना हमें बाइबल में मिलता है एक अलगताई और पवित्रता का है. जब उसने लोगों को अपने पास बुलाया, वह उन्हें पवित्र होने के लिए कहा. जब उसने लोगों को आदेश दिया, कमांड दिया, तब उन्हें पवित्र होने के लिए कहा. जब उसने लोगों को अन्य जातियों से अलग करके अपनी प्रजा के लिए चुना, उन्हें पवित्र होने के लिए कहा. When you read the entire Bible, right from the Genesis down till Revelation, one idea that always comes in the light as one of the most important attributes of God, a triune God, is the holiness. God is holy. Whether you talk about God the Father, definitely to be scriptural, it is used Holy Spirit. But when you talk about God the Father or God the Holy Spirit or God the Jesus Christ the Son, they all are holy. And some would like to always call Holy Trinity. So Christmas is a festival, is a season that talks about the birth of Jesus, but it is originated through the work of Holy Spirit. And Holy Spirit is holy. So the creator of Christmas is holy. इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव का रचने वाला पवित्र है, इसलिए आग्रह है इसको मनाने वालों से कि वे भी पवित्र बने. हमारे जीवन में अगर हम आज के संदर्भ को देखें तो
कई प्रकार की बातें। अभी कल ही हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, परमेश्वर के सेवक के बारे में। वॉक के लिए मैं और मेरी वाइफ गए थे और काफ़ी लंबे समय तक हमने उनके बारे में बात किया। बहुत समय से वो सेवा में थे और सेवा के दौरान कई ऐसी बातें उनके जीवन में हुई जिसके द्वारा उन्होंने अपना नाम गंवा दिया और उनका जीवन कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गया। खुद सेवा में थे, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग आज सेवक हैं या आज नहीं है तो कल सेवक सेविका बन जाएंगे। इस बात को आज हम सीखें कि जब क्रिसमस को हम मना रहे हैं, क्रिस्त जन्मोत्सव को हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उस ऋतु में हम प्रवेश करें, उसे सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं, खुशियां बांटें। इस बात को याद रखें कि क्रिसमस को बनाने वाला, क्रिसमस को रचने वाला एक पवित्र परमेश्वर है। And when you think about Christmas, you can't think about uncleanliness or sin. You have to begin with a life of holiness. आपको एक पवित्रता के जीवन से आरंभ करना पड़ेगा और दूसरों के लिए प्रयास करें कि आपका जीवन ठोकर का कारण ना बने। जिस प्रकार से उस सेवक के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कईयों के लिए वो ठोकर का कारण बन गए, कईयों के लिए वो भटकाव का कारण बन गए, केवल इसीलिए कि उनके जीवन में पवित्रता नहीं थी। सो रिमेंबर, द क्रिएटर ऑफ क्रिसमस इज होली। ख्रिस्त जन्मोत्सव का रचने वाला, बनाने वाला स्वयं पवित्र है, पवित्र आत्मा है। मैं चाहूंगा हम लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 35 आयत को पढ़ें। फ्रॉम देयर वी विल गोना गेट आवर सेकंड पॉइंट। The Holy Spirit will come upon you, and the power of His highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born. The Holy One who is to be born, that will be called the Son of God. The second point I would like to draw before you is the Christ of Christmas. First we saw the creator of Christmas. The second and the most important again is the Christ of Christmas. क्योंकि बिना मसीह के कोई मसीह जन्मोत्सव नहीं हो सकता। खैर बहुत से लोग मना रहे हैं। मैं क्लास में पिछले हफ्ते इस बात को बता रहा था। टुडे शॉपकीपर्स सेलिब्रेट क्रिसमस। टुडे my non-Christian friends are celebrating Christmas. Today even people who don't believe in God, they celebrate the Christmas. आज गैर मसीही ख्रिस्त जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज गैर मसीही अपने घर के सामने तारे और क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं। अभी हम लोग बॉम्बे में थे लास्ट वीक एंड वी वेंट टू वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल देयर, एंड एज वी एंटर्ड in that mall there was a big gigantic Christmas tree almost touching the top of this building. That roof, can you see? That was the height, even more than that, that maybe. इतना ऊंचा क्रिसमस ट्री उन्होंने बना करके रखा था। You know why? Because sometime to attract the customers, कई बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपको उत्सव और साज सज्जा की तैयारी करनी पड़ती है ताकि उसे देखकर लोग आकर्षित हो जाएं। तो आज बहुत से लोग, यहां तक मेनी कंपनीज, एमएनसीज एंड प्राइवेट कंपनीज, दे सेलिब्रेट क्रिसमस। वो सीक्रेट सैंटा बना के रखते हैं। कोई आएगा ऐसे गिफ्ट रख देगा, फिर दूसरा एम्प्लॉय आएगा वो उस गिफ्ट को ले लेगा। दे आर नॉट क्रिश्चियंस, दे आर नॉट क्रिश्चियंस, वे मसीही नहीं है, बट पीपल आर सेलिब्रेटिंग। They have nothing to do with Christ. They have nothing to do with Jesus. But they want the festivity. उनको उत्सव चाहिए क्योंकि we like to celebrate party. You know, we like to party. We are party people. अभी यहां बोलते पार्टी है, चेहरे का पूरा रंग रूप सब बदल जाएगा, right? I just need to say there is a party tonight I am giving. You know, we all will be very excited to be the part of that party and enjoy. Whether we won't care what is the context, what is the reason, who is the subject of the party, but we would like to celebrate. In the same manner, today world is celebrating Christmas, but without Christ, without Jesus. But let's look at the Christ of Christmas. The Christ of Christmas,
I usually don't go to other passage, but I had to go to Luke from Matthew because Matthew has not used the word that Luke has used. You know, anybody notice the word there? The Holy One is to be born, shall be the Savior of the world. The Christ of Christmas is holy. इस ख्रिस्त जन्मोत्सव का जो मसीहा है ना, वो पवित्र है, वो पाक है, वो किसी व्यक्ति के समान निश्चित तौर पर वह एक मनुष्य का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आया, लेकिन वह एक पवित्र मसीहा है, वो एक पवित्र परमेश्वर है और उस पवित्र परमेश्वर के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। तो जब हम इस ख्रिस्त जन्मोत्सव को मनाएं, रिमेंबर यू कैन नॉट फॉरगेट क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस। आप इस ख्रिस्त जन्मोत्सव को जब मनाते हैं, आप मसीह को, जो इस क्रिसमस का केंद्र है, आधार है, उत्पत्ति का कारण है और मुख्य विषय है, आप उसे भूल नहीं सकते, आप उसे बाहर नहीं कर सकते। दो वर्ल्ड में बी सेलिब्रेटिंग फॉर मेनी रीजंस, बट व्हेन यू सेलिब्रेट, रिमेंबर द क्राइस्ट हु इज होली। एंड व्हाट एप्लीकेशन वी गेट आउट ऑफ इट? हमें इससे क्या सीख मिलती है कि जब हमारा मसीहा पवित्र है, हमारे वरिष्ठ पासवान ने लगभग 3-4 बाइबल स्टडी लेकर इस बारे में बताया दैट वी मे बी द इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट, कि हम मसीह के अनुकरण करने वाले बने। और मसीह के अनुकरण करने वाले बनना है तो उसमें से एक कदम यह भी है जो पवित्रता की ओर जाता है, क्योंकि हमारा मसीह पवित्र है। एंड समहाउ मैथ्यू इज नॉट यूजिंग दैट वर्ड, इसलिए लूका से हम देख सकते हैं वहां इस्तेमाल किया गया है कि कोई हिंदी में पढ़ दे तो अच्छा होगा उस आयत को। हिंदी में लूका 1 उसका 35। हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम उद्धार की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, द होली वन दैट इज टू बी बॉर्न विल बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड और द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो आइए इस ख्रिस्त जन्मोत्सव को जब हम मनाते हैं प्रियो, पहली बात उस मसीह को हम ना भूलें, दूसरी बात यह ना भूलें कि वो मसीह पवित्र है। लेट्स नॉट फॉरगेट द क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस एज द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग with the Christmas tree and Christmas Santa and Christmas decorations and star, and okay, you are celebrating with all, it's fantastic, but alongside this never forget the subject of Christmas, which is Christ himself and who is holy। मैं आग्रह करूंगा उसकी 18 और 19 आयत को पढ़ने में सहायता करें। 18 और 19, मत्ती 1 18 और 19, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 and 19। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, मैं आग्रह करूंगा कोई इंग्लिश में ये पढ़ दे। Somebody may help us read in English. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they come together, the third point I would like to keep before you is the couple of Christmas. Couple of Christmas. First one, creator of Christmas. The second one is the Christ of Christmas. And third, which is again very important in the society that we live in, couple of Christmas. Now who are this couple or who is this couple? Joseph and Mary. ये जोड़ा कौन है? मरियम और यूसुफ। इनके बारे में बाइबल एक वाक्य कहती है, यूसुफ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जब इन दोनों की बात होती है एक वाक्य इनके बारे में कहा गया है कि इनके मंगनी के उपरांत, इनके क्या होने से? इकट्ठा होने से। इंग्लिश में आया है बिफोर दे कम टुगेदर और बिफोर दे गेट इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप। माय फ्रेंड्स, when you look at this couple,
There may be many qualities that Joseph may have had or Mary may have had, because when you read the following verses, it talks about that Joseph was a very righteous man. He was the one who used to follow the law of God. When you read about Mary, you know that she is the worshipper of God. She would praise God. They were very devout people. They were committed people. They were religious people. They were the people of law. But one thing you see in this phrase, before they come together, that shows us the couple of Christmas was holy. ये जोड़ा जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का है, उनके इकट्ठा होने से पहले इस बात को दर्शाता है कि यह जोड़ा एक पवित्र जोड़ा था। आज बहुत से जोड़े आप लोग देखते हैं हमारे समाज में, जोड़ा बनना और बनाना बहुत आम हो चुका है, और कई बार जोड़े बनते भी हैं और शाम होने से पहले जोड़े अलग भी हो जाते हैं। We have many couples coming together and before sunset they get separated, or I should say they get zilted. This is the modern word, zilted. और जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आजकल लोग पार्टनर्स बदलते हैं. And the modern term that is very popular now is a live-in relationship, right? लेकिन ये जो जोड़ा है, जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का जोड़ा है, the couple of Christmas is a holy couple. Let us learn this in this Christmas that we celebrate. That learn to be holy, whether you are single today or you are a couple, because we can't guarantee. Definitely the policy of the college says so, but we can't guarantee how many of you are single and how many of you are almost double and how many are pretty double. But whatever your relationship status is, I am no one to interfere. I can just advise, be holy as the Christmas couple is holy. Let the message of this Christmas resound in our hearts and life, and may be seen by our character and our action that we must be holy. As Joseph was holy, religious, devout man, committed to God, committed to the following of the word of God that made him holy. Let us become Mary, who would take the decision to live a holy life, to be committed to God and his word and the principles of consecration in a world, in a society which is filled with all kind of unwanted relationships, necessary contacts. May we learn this Christmas to follow the couple of Christmas, which is holy. Before they come together, before they come together, my friends, आपके बाजू में लोग क्या कर रहे हैं उससे परवाह नहीं पड़ता. हो सकता है कि आपके सामने कुछ लोग ऐसे हो जिनका जीवन अपवित्रता से परिपूर्ण हो, लेकिन आपका आदर्श, क्योंकि आजकल आदर्श ढूंढना बहुत मुश्किल है, टू लुक फॉर अ गुड मॉडल इज वेरी हार्ड इन आवर टाइम. और यही हमारे बड़े पासवान हमेशा बोलते हैं. ही ऑलवेज सेज दिस, दैट हैविंग अ गुड डिग्री doesn't matter, having a good position does not matter, having a good crowd or a big crowd does not matter, how many convention and meetings you get to speak does not matter. All that matters in the end of the day in the Christian life is your character, which is holy or not. आप कितनी बड़ी कलीसिया के पासवान हैं इससे कोई परवाह नहीं पड़ता. आपके जीवन में कितना आपने उपलब्धियां प्राप्त की है, कितनी डिग्रियां आपने प्राप्त करी है, कितना आपका नाम, शोहरत और आपकी ख्याति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका जीवन यदि पवित्र नहीं है, अगर मैं इब्रानी की भाषा में बोलूं, तो आप परमेश्वर को देख नहीं सकते. बहुत इंचू इंचू हो रहा है अलग भागों में जाने के लिए, क्योंकि पवित्रता के बारे में देयर आर सेवरल स्क्रिप्चर, लेकिन आप लोग सब कुछ जानते हैं. The couple of Christmas was holy. Let's learn to be holy. Let's quickly go to the point number 4. I would request someone to read the verse number 18 again. 18 आयत फिर से एक बार मैं आग्रह करूंगा कोई पढ़ने की बात करें, क्योंकि हमारा अगला पॉइंट वहीं से आ रहा है. थोड़ा जोर से पढ़ ले भाई.
या Mary was betrothed to Joseph. Before they come together, she was found with child of the Holy Spirit. या हिंदी में पढ़ दे कोई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हुआ। बहुत अच्छा, थैंक यू। इस प्रकार से हुआ। द प्रोसेस, राइट? द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिसमस व्हेन यू सी इट इज होली, बिकॉज दुनिया में बहुत से जन्म होते हैं। यू सी इन द वर्ल्ड देयर आर सेवरल बर्थ। बाय द टाइम वी विल फिनिश दिस चैपल देयर मे हैव बीन 300-400 बर्थ ऑलरेडी। जब तक हमारा चैपल खत्म होगा ना, 200-300 बच्चे ऑलरेडी पैदा हो चुके होंगे दुनिया भर में, इटारसी में नहीं। हाँ, so there are many birth that is taking place, right? And you and I may also have been born, right? And definitely that's why we are here. कोई ऊपर से गिरा नहीं है। But when you look at the concept of Christmas, or the more simple term, the conception of Christmas, you will see it happened through holiness or the holy process. इसलिए हिंदी में वो शब्द बहुत अच्छा आया है। अब इस प्रकार से किस प्रकार से? दुनिया में बहुत कुछ होता है, कई प्रकार से होता है, लेकिन जो क्रिसमस होने का प्रकार है ना, वो पवित्रता का प्रकार था। इट डिड नॉट हैपन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ह्यूमन एजेंसी। किसी मनुष्य के योगदान से ख्रिस्ट जन्मोत्सव नहीं आया, और क्राइस्ट वॉज नॉट बॉर्न विद द हेल्प ऑफ एनी मैन। इट हैपन थ्रू द पावर ऑफ गॉड। The Holy Spirit overshadowed Mary, and she was conceived with the Holy One of God who would become the Savior of the world. पवित्र आत्मा ने जब मरियम के ऊपर छाया किया और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने गर्भ धारण किया, जो कि एक पवित्र कहलाएगा और बहुतेरों के लिए उद्धार का क्या बनेगा? श्रोता बनेगा। मेरे प्रियो, the concept of Christmas is holy. The conception of Christmas is holy. जो बात दाऊद ने कहा कि मैं पाप में पैदा हुआ, you cannot say that for Jesus. हमारा सबका जन्म पाप के द्वारा हुआ और हम पापी जन्म से हैं। But when you look at Jesus, जब आप मसीह की ओर देखते हैं, वो एक पवित्र प्रक्रिया के द्वारा पैदा हुआ। He was born with a process or with a conception of holiness. इस प्रकार यीशु का जन्म हुआ। तो जब हम उसको मनाते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, हमारी सेवा में, हमारे कार्यों में, हमारे प्रचार में, हमारे विचार में वो पवित्रता झलकनी चाहिए, वो पवित्रता होनी चाहिए। चुनौती कितनी बड़ी भी आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन अलगताई का जीवन आपके अंदर होना चाहिए। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन दी होलीनेस, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं पवित्रता का मतलब क्या है। एक अलगताई का जीवन, एक ऐसा जीवन जो इस संसार से परे है, एक ऐसा जीवन जो स्वर्गीय दिशा की ओर है, एक ऐसा जीवन जिसे लोग देखें और समझ जाएं कि यह परमेश्वर का दास और परमेश्वर की दासी है। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना, पहनना ओढ़ना, देखना दिखाना एक अलगताई के जीवन को प्रकट करने पाए। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिसमस इज होली, बिकॉज द कंसेप्शन ऑफ क्रिसमस इज होली। जबकि इस ख्रिस्त जन्मोत्सव जिस प्रकार से हुआ वो पवित्र था, आज हमारा इसको मनाने का तरीका भी पवित्रता से भरा होना चाहिए। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट स्टेट, बट इट इज समवेयर हियर। You know, the liquor is sold in huge quantity on the day of Christmas. शराब सबसे ज्यादा ख्रिस्त जन्मोत्सव के दिन वहां बिकता है। क्या है मनाने का तरीका? क्या है उत्सव मनाने का तरीका? How are we going to celebrate this Christmas? Are we going to become the messenger of Christ or are we going to become the messenger of devil? क्या हम मसीह यीशु के वक्ता प्रचारक बनेंगे या फिर हम शत्रु के, शैतान के प्रचारक बनेंगे? किस तरीके से हम इसको मनाते हैं, किस तरीके से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हमारा माध्यम क्या है, हमारा तरीका क्या है?
आज हम दुनिया को ख्रिस्ट जयंती में क्या दिखाना चाहते हैं? बिकॉज योर लाइफ शोज क्रिसमस। आपका जीवन ख्रिस्त जन्मोत्सव को दिखाता है। अब कैसे दिखाना है यह आपके हाथ में है। वी शैल गो टू द पॉइंट नंबर 5, मैथ्यू 1:21। मैं चाहूंगा उसकी 21 आयत को पढ़ने में सहायता करें। He will save his people from their sin. कोई हिंदी में पढ़ दे बहनों की तरफ से, अच्छा रहेगा। मिल गया। और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ठंड ज्यादा है मुझे मालूम है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। थोड़े लोगों को गर्मी आई। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। For he shall save his people from their sin. The cause of Christmas. मना तो रहे क्रिसमस हो तो गया, लेकिन कारण क्या है? What is the cause of Christmas? बताइए। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पूरी दुनिया एक बड़े संघर्ष से होकर के जा रही है। हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक युद्ध से होकर के जा रहा है। हर एक इंसान जो एक माता के द्वारा जन्मा है, अपने जीवन में उस आंतरिक युद्ध से होकर जा रहा है। वो युद्ध क्या है? एक अच्छाई और बुराई के जीवन के बीच का युद्ध। इंसान अपने प्रयासों से कितना भी अच्छा करना क्यों ना चाहे, उसके जीवन से बुराई ही निकल जाती है। और अगर 10 अच्छाई कर ले तो 12 बुराई उसके जीवन से निकल जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि दुनिया पाप से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। आज इतनी हत्याएं, इतनी चोरी, इतने क्रिमिनल एक्टिविटीज पूरे विश्व भर में जो हो रहे हैं, और वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉब्लम, अभी तो कुछ लोग क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक करप्शन था, भ्रष्टाचार। वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉब्लम that shows the corruption of heart. The corruption of the world, the corruption of society shows the corruption of human heart. समाज में पाया जाने वाला भ्रष्टाचार, बुराई, अनैतिकता मनुष्य के दिल में पाए जाने वाले पाप का प्रमाण है। और इसीलिए शायद आप लोग अपने अपने डॉर्मेटरी में ताला लगा के आए हैं। Therefore, you have locked your dormitories. Am I right? Your suitcases. My friends, there is a solution. उसके लिए एक समाधान है, और वो समाधान कोई और नहीं, कोई सलाहकार नहीं, कोई मंत्रिमंडल नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई बुद्धिजीवी नहीं, कोई दर्शन शास्त्री नहीं। उस पाप, उस भ्रष्टाचार का समाधान यदि कुछ है तो वो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। If the solution for the corruption of this world, if there is any possible remedy, that is nothing but the Messiah, Christ Jesus. Amen. Hallelujah. और यह संदेश मेरे प्रियो आज दुनिया को हमें बताना है कि क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं। What is the cause of Christmas? Is not Christmas tree, is not Christmas Santa, is not the star, is not the props and decorations and all the things that we do, but it is the message that for remedy of your heart, for the problem of your life, there is a solution, and there is a solution in Jesus Christ, because he was born to redeem you from your sin and the penalty of sin. उसका जन्म हुआ कि आपके गुनाहों से, आपके पापों से आपको स्वतंत्र करे, और पाप के दंड से वो आपको आजाद करे, and to give you power by the Holy Spirit and the Word of God to live an empowered life today. आपको पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा वो सामर्थ्य वो दे कि आज आप एक सशक्त जीवन जो पाप पर जय पाने का है व्यतीत कर सके। दिस इज द कॉज ऑफ क्रिसमस। यही ख्रिस्त जन्मोत्सव का कारण है कि अपने लोगों को उनके पापों से वो बचाने पाए। So many people remember his birth, but they don't remember the cause of birth.
But I thank God, in Itarsi every year we go in the city, and through our songs, through our messages, through our, the preachings, we talk about the reason for the birth of Jesus. यीशु क्यों जन्म लिया? कि आपके पापों से आपको स्वतंत्रता देने पाए. Some of my friends, they go to prison, क्योंकि आज के दिन में कुछ स्थानों में बंदीगिरी में जाने की पूरी स्वतंत्रता होती है. They go to prison and give the gospel and tell why Jesus was born. My other friend, very few kilometers from here, every Christmas he will conduct a celebration, a party, but he will not call any Christian. He will call all the non-Christian. वो सारे गैर मसीही लोगों को बुलाता है और एक सेवक को बुला करके, कुछ जवानों को बुला करके, कार्यक्रम दिखा करके यीशु मसीह क्यों आया इस संदेश को उन्हें देता है. मेरे प्रियो, जब इस वर्ष हम ख्रिस्त जन्मोत्सव को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, एज वी आर गेटिंग इनटू द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, क्यों ना हम अपने आप में इस बात का दृढ़ निश्चय करें दैट आई विल टेल पीपल द कॉज ऑफ क्रिसमस, कि मैं लोगों को बताऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगी कि ख्रिस्त जन्मोत्सव का कारण क्या है. वो आपके लिए पैदा हुआ है, वो आपके लिए पैदा हुआ है कि आपके गुनाहों को, आपके पापों को, आपके दिल के, आपके मन के उस भ्रष्ट स्वभाव को, उस पाप को, उस अनैतिक, उस दुराचार के जीवन को वो हरने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए और एक उद्धार का जीवन देने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है. और जब इस संदेश के साथ आप जाएंगे मेरे प्रियो, आई बिलीव देयर विल बी चेंज, देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन, देयर विल बी रेस्टोरेशन, देयर विल बी ग्रेट हार्वेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड. जब आप इस संदेश के द्वारा लोगों के पास जाएंगे, एक बड़ा परिवर्तन होगा, एक रूपांतरण होगा, एक लोगों के जीवन में बहाली आएगी और परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक बड़ी कटनी को काटने पाएंगे. लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, बिकॉज बेल हैज रैंग, is the celebrators of Christmas. We saw the creator of Christmas, we saw the Christ of Christmas, we saw the couple of Christmas, we saw the concept of Christmas, we definitely saw the cause of Christmas, and the last and the final one, celebrators of Christmas. मनाने वाले या उत्सवी, जो इस उत्सव को मनाने वाले हैं, वो कौन है या वे कौन होने चाहिए? मैं आग्रह करूंगा कोई ऊंची आवाज में पढ़ने में सहायता करें. पहला पतरस 1:15, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 15. या दिस इज द मैसेज, or I should say the consequence or result of Christmas that should come in our life is that the one who has called you is holy, therefore you shall be holy. जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए आप भी अपने जीवन में पवित्र बने. तो जो उत्सवी हैं, the celebrators हैं, जो इसे मनाने वाले हैं, this is the prerequisite of your celebration, that you think about your own holiness. इससे पहले कि आप दूसरों को जाकर के बताएं, इससे पहले कि आप क्रिसमस ट्री अपने घर में बनाएं, इससे पहले कि आप तारा लगाएं, इससे पहले कि आप रैली में यीशु पैदा हुआ गाना गाएं, think that are you an eligible celebrator of Christmas? इससे पहले कि उस पवित्र मसीहा का संदेश आप सुनाएं, इससे पहले कि उस पवित्र रचयिता के बारे में आप बताएं, इससे पहले कि उस पवित्र जोड़े का आप उदाहरण दें, इससे पहले कि लोगों को पवित्र बनाने के कारण के बारे में, क्योंकि पाप से मुक्त करना मतलब उनको पवित्र बनाना. वी आर रिडीम्ड एंड मेड होली बाय द वर्क, रिडीमिंग वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट. मसीह यीशु के छुटकारे के काम के कारण आज आप और मैं अपने वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग. इसलिए बोलते हैं चर्च में, अपने पवित्र हाथों को उठाकर बोले हालेलुया. पवित्र आपके कारण नहीं हुआ है, वो पवित्र मसीह के कारण हुआ है. Your hands have become holy not because you have done something, but Christ has done something for you. Amen. Hallelujah. और जब मसीह ने आपके लिए कुछ किया है, उस संदेश को जब आप सुनाएं, let us evaluate our life, and this is the application of my message. Let us
री-इवैल्यूएट, रीथिंक, री-इमेजिन आवर क्रिश्चियन लाइफ टुडे, कि हम मसीह में, परमेश्वर में अपने जीवन को कितनी पाकीज़गी के साथ जी रहे हैं, कितनी पवित्रता के साथ जी रहे हैं। इस ख्रिस्त जन्मोत्सव में यह संदेश आपके लिए एक चुनौती हो जाए। डू यू लाइक इट और नॉट? लेट दिस बिकम अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग मी, दैट वी मे कम वन मोर स्टेप क्लोजर टू गॉड इन द वॉक ऑफ होलीनेस, कि हम परमेश्वर के एक और कदम निकटता में आ जाएं पवित्रता की चाल चलते हुए। बिकॉज अ कॉन्सिक्रेटेड लाइफ, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, is a life of holiness, is a life of separation. It is unlike the life of your neighbor. It is unlike the life of maybe your family member. It is unlike the life or maybe some other Christians that you may have seen, like, sometimes we would like to call nominal Christians, जिनके लिए ख्रिस्त जन्मोत्सव केवल एक मामूली त्योहार के समान है जो कैलेंडर में छुट्टी के रूप में आता है। कई बार संडे में आता है तो बहुत दुख हो जाते हैं। पहले हो गया था ऐसा, संडे छुट्टी का दिन, उसी दिन क्रिसमस भी आ गया तो सरकारी छुट्टी भी नहीं मिली भैया। सो फॉर सम पीपल इट्स जस्ट अ हॉलीडे, इट्स जस्ट अ फेस्टिवल, बट फॉर अस हु आर रियली सीरियसली थिंकिंग अबाउट क्रिसमस इन दिस मॉर्निंग, लेट दिस बिकम अ डे और अ सीजन of thinking about our life of holiness. पवित्रता का जीवन जो हम मसीह में जी रहे हैं, उसके ऊपर पुनः हम विचार करें कि आज हम कहां हैं। और गलती सबसे होती है, गुनाह सबसे होता है, भूल चूक सबसे होती है। लेट मी गिव यू गुड न्यूज, वी ऑल गो रॉन्ग, वी ऑल डू मिस्टेक, वी ऑल फॉल शॉर्ट, वी ऑल स्लिप। खासकर टाइल्स वाले घर में और ज्यादा होता है। इसलिए मैं वाइफ को बोल रहा था, आई डोंट लाइक हाउस विद टाइल्स, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग पहले टाइल्स वाले घर में गिरते हैं, चोट लगती है, फिर कब्रिस्तान जाते हैं। हां, आप देख लीजिए, ये मैं एकदम आपको परफेक्ट सिस्टम दे दिया। तो मसीह जीवन में कई बार हम भी फिसल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वी आर सिनलेस परफेक्शनिस्ट, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. But as we heard the message of holiness right from Creator down till the cause, let us rethink our life in Christ. पुनः अपना जीवन मसीह में जो पवित्रता का है हम उस पर विचार करें और होने पाए कि हम अपनी शक्ति से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन की सामर्थ से और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं. तो ये मेरा विश्वास है कि आज का संदेश हम में से हर एक के लिए लाभप्रद रहा. यदि आपने सचमुच कुछ पाया है तो इस चुनौती के साथ आप यहां से जाएं. और मेरा फिर से एक बार आप सभी को ख्रिस्त जन्मोत्सव और नए साल की शुभकामनाएं. आशा है कि यह वर्ष और यह ख्रिस्त जन्मोत्सव आपके लिए बरकतों से बढ़ा हुआ होने पाए. आप सभी को जय मसीह की. प्रेज़ द लॉर्ड.